Good morning, students. Now, in today's lecture, we will discuss force acting on conductor carrying current in magnetic field. Okay. Suppose this is magnetic field, uniform magnetic field of magnitude B. Okay. So this is the direction, and that magnetic field is perpendicular and directed inward, so that they are denoted by dotted lines. So magnetic field is horizontal in plane. Okay. And this is a conductor carrying current I through it, so that it experiences a force. We have to find expression for that force and the direction of the force. Now before that, consider a point charge, Q charge, okay, plus Q charge, and let it move in this direction with velocity v. Okay, that means consider a charge, point charge Q, which is moving with velocity v in the given direction, that is in the presence of uniform magnetic field. Then this charge will experience a force, okay, that is known as magnetic force, and which is given by vector F is equal to Q in bracket vector V cross vector B. ये formula है. So this amount of force experienced by the charge, okay, and the direction of force is such that it is perpendicular to the plane containing velocity of the charge and magnetic field. अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी? वर्टिकली अपवर्ड, ओके, या वर्टिकली डाउनवर्ड. मतलब द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग these two vectors quantities. Okay. Now this is equation number 1. Now in magnitude form we can write F is equal to Q V B sin theta. Cross multiplication is the sin theta. Okay, this is equation number 2. Now what is theta? Theta is the angle between direction of velocity of the moving charge and direction of magnetic field. तो ये angle यहाँ पर, this angle is theta. Okay. Suppose charge Q is moving in the direction of magnetic field. मतलब this is the direction of magnetic field. अगर charge इस direction में move होता है, तो direction की मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा. मतलब इफ थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मींस एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0, व्हिच इज इक्वल टू 0 बिकॉज साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, राइट. सपोज प्लस क्यू चार्ज इज मूविंग in a direction perpendicular to the direction of magnetic field. इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री. ओके, तो F is equal to QVB. Okay, because sin 90 is equal to 1. So this will be the maximum force experienced by the point charge moving in perpendicular direction of magnetic field. This is the force experienced by the point charge moving with velocity v. Okay. Now हमें क्या करना है यहाँ पर? फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर कैरिंग करंट इन मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए एक्सप्रेशन तैयार करना है. नाउ कंसीडर कंडक्टर हेल्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब कंडक्टर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज आल्सो इन हॉरिजॉन्टल प्लेन बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड. ठीक है, तो let current I passes through the conductor. अब करंट का मतलब क्या होता है? We know that I is equal to dq by dt, that is flow of charge, है ना? Rate of flow of charge through the conductor is known as current. अब flow of charge मतलब यहाँ पर through the conductor अगर करंट पास होता है, इसका मतलब वहाँ पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं एक्चुअल में.
Okay, and that negative charge electron moves in opposite direction to the direction of current. Okay, this is known as conventional direction of current. Let it moves from left to right, तो इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट मूव होंगे. देखिए यहाँ पर सपोज हम स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं, स्मॉल एलिमेंट dl. ओके, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी स्मॉल एलिमेंट की, इन द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट. ठीक है. नो सपोज फ्रॉम दिस स्मॉल एलिमेंट dl let electrons moves in time dt. Okay, तो some electrons are moving through dl in time dt, तो उनका चार्ज कितना होगा, let this is minus dq. Okay, minus dq is the charge on electrons that moves through the small element dl in time dt. Okay, इसका मतलब उतना ही पॉजिटिव चार्ज मूव होता होगा, okay, in the direction of current. Okay, that means plus dq charge will move in the direction of current through this small element in the same time dt. Because current means what? The direction. What is the meaning of current? That current is nothing but the flow of charges through the conductor. Suppose in time dt through the small element dl let minus dq charge electrons moves, okay, towards the left side. So in the same time through the same small element dl plus dq charge will move towards the right side. Okay, therefore velocity of charge is given by, okay, v is equal to dl by dt. Okay, velocity is given by dl by dt, because देखिए plus q plus dq charge passes through the small element dl, मतलब through distance dl in time dt. So what is the velocity of charge? That is v is equal to vector dl by dt. ठीक है. Now अब चार्ज dq यहाँ से मूव होता है, मतलब स्मॉल एलिमेंट dl पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. देखिए सपोज स्मॉल फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट होता है ऑन स्मॉल एलिमेंट dl, ओके, व्हिच इज गिवन बाय, यहाँ पर चार्ज कितना है dq, राइट, इन ब्रैकेट वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b. नो d ऑफ इज इक्वल टू dq इन ब्रैकेट. अब वेक्टर v को हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, वेक्टर dl by dt, ओके, क्रॉस वेक्टर b, राइट. वेक्टर d of is equal to dq by dt. Now dt take out from the bracket, so in bracket vector dl cross vector b, right. Now d of is equal to dq by dt का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू स्मॉल एलिमेंट dl. तो यहाँ से करंट पास होता है कितना, I करंट. सो dq by dt is replaced by I in bracket vector dl cross vector b. ठीक है. Let this is equation number 3. Now this is the small amount of force experienced by the small element dl in the presence of magnetic field. Okay, when current I passes through it, right. Now this conductor is made up of large number of such small elements. Okay, so total force experienced by this conductor which is placed in magnetic field due to all such small elements is given by, therefore total force experienced by conductor of length L, okay, placed in magnetic field B and carrying, इसमें से करंट कितना पास होता है, carrying current I, okay, is given by.
F is equal to summation of df, summation of df. देखिए, this conductor is made up of small elements, large number of such small elements. अब एक स्मॉल एलिमेंट के ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है? इक्वेशन नंबर 3 है ना, df is equal to I in bracket dl cross vector b. Now due to all such small elements, टोटल कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स होगा? That is F is equal to summation of df. मतलब टोटल फोर्स is equal to summation of all the forces experienced by these small elements. Okay, तो यहाँ पर F is equal to summation, अब df का मतलब from equation 3 I in bracket vector dl cross vector b. Okay, now F is equal to मतलब वेक्टर F, यहाँ पर ये वेक्टर होगा, वेक्टर F is equal to I in bracket summation vector dl, okay, cross vector b. देखिए I constant है throughout the conductor, same current is flowing. Magnetic induction, that is uniform magnetic induction, horizontal direction, वो भी constant है throughout the conductor. तो इसलिए हमने समेशन से बाहर निकाला है. तो समेशन ऑफ वेक्टर dl, ओके, नाउ वेक्टर F is equal to I in a bracket. अब समेशन dl मतलब क्या होता है? From this end to this end, जितने भी स्मॉल एलिमेंट्स होंगे उन सब की लेंथ की एडिशन यहाँ पर होगी. सो वी गेट हियर टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्रॉस वेक्टर b. ओके, वेयर length L is vector quantity and its direction is directed in the direction of current. देखिए यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट हमने कंसीडर किया है, ओके, और इस स्मॉल एलिमेंट dl या फिर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. नो, सो दिस इज द इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4. ओके, this gives the total force experienced by the conductor when current carrying through it placed in magnetic field. Okay, summation vector dl is equal to vector L. That means a vector drawn along the conductor in the direction of current. ठीक है, अब यहाँ पर F की डायरेक्शन क्या होगी? मतलब force experienced by the conductor when placed in magnetic field carrying current I. ओके, तो इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, वेक्टर F is equal to I in bracket वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B. तो इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is given by Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. Now what is Fleming's left hand rule? देखिए, left hand, okay, thumb, first finger, middle finger, okay, thumb, first finger, middle finger, all are stretched such that they are mutually perpendicular to each other. Okay, now thumb denotes the direction of force experienced on conductor. First finger denotes the direction of magnetic field, okay, and middle finger denotes the direction of current. Okay, तो देखिए यहाँ पर suppose this is thumb, ये thumb है यहाँ पर, okay, this is forefinger या first finger and this is middle finger. Okay, thumb, first finger, middle finger, okay, stretched such that they are mutually perpendicular to each other. अब thumb पर क्या होता है? यहाँ पर फोर्स होता है, ओके, फर्स्ट फिंगर पर मैग्नेटिक फील्ड और मिडल फिंगर पर करंट होता है. तो ऐसे आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है, F B I. ओके, देखिए F B I, F मतलब फोर्स, B मैग्नेटिक इंडक्शन, I करंट, F B I है ना, C B I, S B I जैसे होता है, वैसे ये भी आपको याद रखना है.
एफ बी आई, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। ओके, अब इस डायग्राम में देखिए फोर्स की डायरेक्शन क्या हो सकती है, दैट इज एक्सपीरियंस ऑन द कंडक्टर। ओके, एफ बी आई, ये याद रखिए। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी यहां पर इनवर्ड है, तो फर्स्ट फिंगर इस डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी। करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो थंब की डायरेक्शन कैसी होगी, वर्टिकली अपवर्ड। इसका मतलब अगर करंट आई पास होता है थ्रू दिस कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टली इनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, तो थंब मतलब फोर्स की डायरेक्शन, तो इस कंडक्टर पर फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, वर्टिकली अपवर्ड होगी। स्टूडेंट, तो इसका मतलब देखिए अगर हम कंडक्टर कैरी करंट आई इसको फ्री छोड़ देते हैं यहाँ पर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कंडक्टर इस तरह से मूव होगा वर्टिकली अपवर्ड, बिकॉज इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है। ओके, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ओके, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू वर्ड्स लेफ्ट, तो अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी देखिए, एफ बी आई। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है लेकिन करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी अब, राइट, तो थंब की डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस तरह से हम बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल, ओके, वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस ऑन कंडक्टर। समझ में आ रहा है आपको, एफ बी आई, ये याद रखना है आपको। ओके, तो इस तरह से हम फोर्स की डायरेक्शन यहां पर निकाल सकते हैं। नो, magnitude of this force is given by F is equal to I L B, है ना, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब साइन थीटा लेंगे, I L B sin theta. This is equation number 5. So this gives the magnitude of force experienced on conductor of length L carrying current I and placed in magnetic field of induction B. Okay, now what is theta? Theta is the angle between length and magnetic field, है ना। थीटा का मतलब क्या होगा यहाँ पर, थीटा is angle between L and B. ओके, इन दोनों के बीच एंगल। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन, सपोज दैट कंडक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, करंट सपोज ऐसा हम कंसीडर करते हैं और करंट की डायरेक्शन भी इनवर्ड है, ठीक है। मतलब देखिए वेक्टर ड्रॉन अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर मतलब L। ओके, इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट भी इनवर्ड है और लेंथ भी इनवर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कंडक्टर यहाँ पर कंसीडर करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कंडक्टर जिसमें से करंट पास होता है, करंट की डायरेक्शन दैट मींस वेक्टर ड्रॉन अलोंग द कंडक्टर, इसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम होंगे। इसका मतलब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो जाते हैं, राइट। अब पैरेलल होने के बाद उनके बीच एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। वी नो दैट sin 0 इज इक्वल टू 0, तो f की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 0 होगी। मतलब अगर कंडक्टर हम प्लेस करते हैं, इवन इट इज कैरिंग करंट, बट इफ इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता है, फोर्स एक्ट नहीं होगा इसके ऊपर, ठीक है। नो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब देखिए जैसे इस डायरेक्शन करंट कैरिंग कंडक्टर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ओके। नो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, परपेंडिकुलर टू बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, देयरफॉर f इज इक्वल टू sin 90 1 हो जाती है ILB। So this is maximum force experienced by the conductor। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को अगर कंडक्टर की डायरेक्शन, लेंथ की डायरेक्शन या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, तो उस कंडीशन में कंडक्टर के ऊपर मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होता है, राइट, एंड व्हिच हैज मैग्नीट्यूड ILB।
ओके स्टूडेंट्स, नो देखिए फ्रॉम दिस इक्वेशन F इज इक्वल टू आई एल बी। ओके, तो B के लिए इक्वेशन क्या होगा, F डिवाइडेड बाय आई एल, F डिवाइडेड बाय आई एल। ओके, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 6। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन ऑब्टेन द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर, F मतलब फोर्स न्यूटन, ओके, I करंट एम्पियर, L लेंथ दैट इज मीटर। तो ये SI यूनिट हो जाता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, दैट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और यूनिट जो हमें पता है दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, वेबर पर मीटर स्क्वायर। नाउ ये SI यूनिट कैसे ऑब्टेन होता है, बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, है ना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। देखिए और एक फार्मूला B इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डिनोटेड बाय 5 अपॉन एरिया A। सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डिनोटेड बाय व्हिच यूनिट, वेबर, एंड एरिया मीटर स्क्वायर, राइट, and this is known as capital T, that is Tesla, right? Now CGS unit is, अब यही फॉर्मूले से देखिए, F मतलब डाइन, बराबर, डाइन पर यूनिट। अब करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर और CGS यूनिट क्या होता है, स्टैट एम्पियर, या फिर इसको हम EMU लिखते हैं, that is electromagnetic unit, okay, that is stat ampere, into length, that is centimeter, okay, डाइन पर EMU सेंटीमीटर या फिर डाइन पर स्टैट एम्पियर सेंटीमीटर, okay, this is equal to Gauss, okay, या फिर this is equal to Oersted, This is equal to Oersted। इसका मतलब SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला और CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस और ओर्स्टेड। ओके, तो इनके बीच रिलेशन क्या होगा, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, कैपिटल G मतलब गॉस, यहाँ पर हम कैपिटल O भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर गॉस यही CGS यूनिट यूज होता है, इसलिए हमने यहाँ पर कैपिटल G लिखा है, ठीक है। सो दिस रिलेशन गिव्स द कन्वर्जन बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू हाउ मच गॉस, 10⁻⁴ गॉस, और 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ड्यूरिंग सॉल्विंग द MCQs और न्यूमेरिकल्स। कभी अगर गॉस में मैग्नेटिक फील्ड दिए तो उसका कन्वर्जन टेस्ला में करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴। Okay student, see student, the direction of force experienced on conductor is given by Fleming's left hand rule। Okay, ये तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है, यह BI, okay, force, magnetic field, electric current की direction। Okay, now this direction of force acting on conductor is given by another law, that is right hand palm rule। Okay, अब राइट हैंड पाम रूल मतलब क्या होता है, नो, स्टेट द फिंगर्स एंड थंब ऑफ राइट हैंड, ओके, पर सच दैट द थंब एंड स्ट्रेच्ड फिंगर्स मेक्स एंगल 90 डिग्री बिटवीन देम। नो, स्ट्रेच्ड फिंगर्स डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, थंब डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, एंड द परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू पाम of the right hand gives the direction of force। देखिए यहाँ पर अब स्ट्रेच्ड फिंगर डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी, डायरेक्टली इनवर्ट, तो इस डायरेक्शन में हम करेंगे। थंब डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, तो इसका मतलब नॉर्मल टू द पाम दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स कंडक्टर के ऊपर की तरफ ऐसे एक्ट होगा। अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो राइट हैंड पाम क्या होगा, इस तरह से होगा, बिकॉज थंब डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पर करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो फोर्स कैसे होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके,
इसका मतलब राइट हैंड पाम रूल क्या होगा यहाँ पर, स्ट्रेट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, ओके, एंड थंब सच दैट दे विल मेक 90 डिग्री एंगल बिटवीन देम. Then if stretched fingers denotes the direction of magnetic field, thumb denotes the direction of current, then the normal to the palm that gives the direction of force exerted on conductor carrying current. Right students? No. यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज लॉरेंस फोर्स. ओके, लॉरेंस फोर्स. अब लॉरेंस फोर्स मतलब क्या होता है, देखिए सपोज यहाँ पर हम चार्ज कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज Q. ओके, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितनी होगी, E होगी. तो इस पॉइंट चार्ज पर देखिए एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है. ओके, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स डिनोटेड बाय वेक्टर F, दैट इज इलेक्ट्रिक. ओके, प्लस एडिशनल जब ये चार्ज यहाँ पर मूव होता है विथ वेलोसिटी v इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फोर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस होता है ना, दैट इज नोन एज फोर्स एक्सपीरियंस ऑन मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. तो इस तरह से पॉइंट चार्ज पर दो तरह के फोर्सेस एक्सपीरियंस होते हैं. ओके, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट्स ओन चार्जेस, and second magnetic force, that means it is moving with velocity v in the presence of magnetic field. इसकी वजह से magnetic force भी यहाँ पर तैयार होता है. तो due to superposition principle total force acting on the charge कितना होगा, that is force due to electric field plus force due to magnetic field. Okay, that is total force, that is FL, known as Lorentz force. तो FL वेक्टर F मतलब लॉरेंस फोर्स इज इक्वल, अब इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, ओके, F इज इक्वल टू QE, बराबर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज. ये डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. तो वेक्टर F के लिए फॉर्मूला क्या होगा, Q इनटू वेक्टर E. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स, तो Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, प्लस अब मैग्नेटिक फोर्स यहां पर कितना होता है, Q इन ब्रैकेट V क्रॉस वेक्टर B. ओके, सो टोटली दिस इज नोन एज लॉरेंस फोर्स. ओके स्टूडेंट्स,